Very good morning, class. As usual, we'll start our class after taking this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, class, we were doing lesson number 2, and today in this chapter, we'll discuss layers of atmosphere. Layers of atmosphere. Before starting layers of atmosphere, let us see atmospheric gases. Atmospheric gases. First, each gas in the atmosphere has its own unique properties. Some of the important gases in the atmosphere are, first one is nitrogen. We know in our atmosphere, nitrogen present in our atmosphere 78%. The nitrogen in the most abundant gas. It is the colorless, odorless and tasteless gas present in all living organism as a part of important biological molecules. It helps in the growth of living beings. तो living being की growth में ये help करती है नाइट्रोजन. और हमारे एटमॉस्फेयर में abundant gas है नाइट्रोजन 78% है. Next one is oxygen. Oxygen is the colorless, odorless and tasteless gas. All living organisms require oxygen for respiration. तो सांस लेने के लिए सारे living organism को oxygen required है. Next one is argon. Argon is the third most abundant gas in the atmosphere. It constitutes 0.934% of air. तो इतनी है argon. It is an inert gas and has many industrial application. तो इसके बहुत से industrial applications हैं. Next, carbon dioxide. Carbon dioxide constitutes about 0.04% of atmosphere. During respiration, most organisms release carbon dioxide. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide to produce energy. Here we know about that. So next, water vapors. Water vapors is the main element of all weather phenomena on earth. Water vapors main element है कोई भी weather phenomena उसके लिए. Water is constantly evaporated from the earth's surface into the atmosphere. कॉन्स्टेंटली एवापोरेट होता रहता है अर्थ के सरफेस से. द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड प्रेसिपिटेट्स बैक इनटू वाटर एज रेन. तो क्या होता है, वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं और फिर प्रेसिपिटेट होके फिर वापस रेन की फॉर्म में चले जाते हैं. दस वाटर वेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटर वेपर्स का इंपॉर्टेंट रोल है. इट ऑल्सो मेंटेन एटमोसफियर ह्यूमिडिटी को भी करता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर में क्या है, वी हैव 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफियर. फर्स्ट I'll tell you name of the layers. First one layer is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. You can understand about these layers by this picture. Structure of atmosphere. Troposphere, it in altitude above the earth surface. ट्रोपोस्फियर क्या है, जो अर्थ का सरफेस है 16 to 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर एंड टू 8 किलोमीटर अबव द पोल्स. ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, यू कैन सी द पिक्चर्स, एयरक्राफ्ट्स, क्लाउड्स, माउंट एवरेस्ट, ये सारे ट्रोपोस्फियर लेयर में मिलते हैं. तो क्या है, ये लोएस्ट है, डेंसेस्ट है एंड हैवीएस्ट लेयर
मेड अप ऑफ ऑल द हैवी गैसेज। तो इसमें क्या ये हैवी गैसेज से बना है, सबसे लोएस्ट है, डेंसेस्ट एंड सबसे हैवीएस्ट लेयर है। ग्रेविटी पुल भी ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ के पास, इसीलिए है जी। तो CO2, N2 एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट, इसमें ये वाली गैसेस प्रेजेंट है। ऑल्सो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट। ट्रोपोस्फियर में क्या है, तो वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन भी। तो ट्रोपोस्फियर में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन भी मिलती है हमें। ओनली लेयर विच इज़ हायर अबव इक्वेटर, ये सिर्फ एक ही ट्रोपोस्फियर ही है जो क्या है, हायर अबव इक्वेटर, इक्वेटर के अबव है, एंड लोअर एट पोल्स, और पोल्स के लोअर है। और अदर्स जो जो रहेंगी ये कहाँ रहेगी, अप टू द अबव द अर्थ सरफेस। और जो ट्रोपोस्फियर है ये कहाँ रहेगी, अबव द इक्वेटर, ठीक है, इट इज़ अबव द इक्वेटर, 16 to 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। ओनली दिस लेयर ऑफ एटमोसफियर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। एयर बिकम्स रेयरिफाइड विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, हम ऊपर की लेयर्स में जाते हैं, तो क्या हो जाता है, एयर बिकम्स रेयरिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर पहले तो जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें जो जहाँ ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोपॉज। ये वेरीज करती है, कहीं 11 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये होती क्या है, ट्रोपोपॉज, बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है इसकी और स्ट्रेटोस्फियर है इसकी जो बाउंड्री है इसके बीच का, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट वी हैव अब हमारे पास कौन सी है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमोसफियर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, इट इज़ अप टू 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये क्या है, अर्थ सरफेस से नियर अबाउट 50 किलोमीटर ऊपर तक है। इट कंटेन्स ओजोन मेनली कंसनट्रेटेड इन अपर लेयर्स। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होती है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 51 डिग्री सेल्सियस नियर ट्रोपोपॉज टू -15 डिग्री सेल्सियस नियर स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो क्या है, टेम्परेचर -15 डिग्री तक चले जाता है। Next we have stratopause. Stratopause, it's a boundary between mesosphere and stratosphere. That is stratopause. ये क्या है, up to 15 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर इस पे जो बाउंड्री है इस दोनों में बीच का, जहाँ ये ख़त्म हो जाती है लेयर, और मेसोस्फियर स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोपॉज। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है इस पर। तो ये कौन सा जोन है, जोन ऑफ ट्रांजिशन टू मेसोस्फियर जाने का। तो ये मेसोस्फियर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये क्या है, अप टू 85 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अबव अर्थ के सरफेस से कितना है, 85 किलोमीटर ऊपर ज़्यादा है। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ये सबसे कोल्डेस्ट है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड विद द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -90 डिग्री सेल्सियस एट द अपर एंड। तो मेसोस्फियर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ -90 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, 80 किलोमीटर तक, 85 तक ऊपर तक। -85 से भी कम टेम्परेचर, -90 डिग्री तक
चला जाता है। तो अभी बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर दैट इज मेसोपॉज। तो मेसोपॉज क्या हो सकती है, 5 किलोमीटर थिक हो सकती है। एवरेज टेम्परेचर इसका कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो सकता है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में जो बाउंड्री लाइन है उसका। तो इसमें क्या होता है, मेसोपॉज में जब मेसोस्फीयर ख़त्म होता है थर्मोस्फीयर स्टार्ट होने से पहले, तो इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ CO2 कूल्स द लेयर कॉन्सिडरेबली। तो CO2 का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, ये है हमारे अर्थ सरफेस से अप टू 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाती है ये लेयर। तो इसका क्या है, बिकॉज देयर आर रिलेटिवली फ्यू मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स होते हैं इसमें इन द थर्मोस्फीयर, इवन एब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ solar energy can significantly increase the air temperature, making the thermosphere the hottest layer in the atmosphere. इसको hottest layer बना देता है solar energy thermosphere को. Next we have last layer of the atmosphere, that is exosphere. Exosphere up to 11,000 किलोमीटर from the earth. ये क्या है, एक्सोस्फीयर कहाँ तक हो सकती है, अप टू 11,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस पाई जाती हैं इसमें। टेम्परेचर वेरीज greatly and can range from 0 degree to over 1650 degrees Celsius. It is colder at night, exosphere colder at night and much hottest during the day. रात को बहुत ज़्यादा ठंडी और दिन में हॉटेस्ट हो जाती है ये एक्सोस्फीयर। तो these were the three layers of atmosphere, and each atmosphere has unique characteristics and unique features, important features and significance. So our content is only up to this much. We'll continue with another chapter in the next class. With this, goodbye to all of you.